May, June 2021, variance 42. An aqueous solution of chromium 3 contain the green complex sign. Complete the electronic configuration of an isolated gaseous chromium 3 plus ions. अगर आपको याद हो chromium की electronic configuration थी argon 3d5 4s1, right? अगर 3 plus charge है तो 4s से 1 electron, 3d से 2 electrons चले जाएंगे. Then obviously आपके पास configuration होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद आएगा 3d3. Define the term complex ion an ion in which transition element is surrounded by ligands through dative bond. ठीक है. Chromium aqueous ion shows some similar chemical properties to cobalt 2 ions. Sample of chromium are react separately with NaOH, H2O, or excess aqueous ammonia. Use this information in the data booklet to suggest the formula of the chromium species form. State the type of reaction taking place in each case. अगर मैं इस complex ion को NaOH से treat करवाऊंगा तो obviously chromium hydroxide के white precipitate, chromium hydroxide के green precipitates बनेंगे. Type of reaction is precipitation. आप चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. आप ये नहीं लिखना चाहते तो मैंने क्लास में ये करवाया आपको. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. H2O taken 4 dot OH taken 2 plus. That's how you can write it. ठीक है. और इसकी जगह पे आप और क्या लिख सकते हैं? क्रोमियम हाइड्रोक्साइड. तो दोनों में से कोई भी लिख दीजिए. It doesn't make any difference. And ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको इस तरह से लिखें. 3 3 से रिमूव कर दें. ठीक है. अगर मैं H2O2 से रिएक्शन करवाऊंगा तो आप जानते हैं H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. वो क्रोमियम 3 आयंस को ऑक्सीडाइज करके क्रोमियम 6 आयंस में कन्वर्ट करेगा. तो ये हो जाएगा आपके पास Cr2O7 2 नेगेटिव एंड ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगी बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हुआ है. अगर मैं एक्सेस एक्वस अमोनिया यूज करूंगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ तो लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा. वाटर रिमूव हो जाएगा और अमोनिया अगर अटैच हो जाएगा. Ligand exchange or ligand substitution is the same thing. Chromium 2 plus ions and this are both complexes of chromium 2 and have different colors. Explain why colors of these complexes are different. So obviously both the complexes have different ligands
So splitting of degenerate d orbital is also different. For electron promotion, photon of a specific frequency photon of a specific frequency is needed. Hence, its complementary color is observed. The structure of this complex is shown. Ethanoate ions acts as a ligand in this complex. The ethanoate ligands is shown by this. अगर आप ethanoate ligand को इससे represent कर रहे हो, इसका मतलब it is acting as a ligand as well. ठीक है, bidentate ligand. ठीक है, क्योंकि simultaneously दो dative bonds form करेंगे अगर आप देखें. Water and ethanoate ions behaves as different types of ligand in this complex. Suggest an explanation for this statement. तो आप बताइए कि water जो है वो monodentate ligand है. While ethanoate is bidentate ligand. Deduce the coordination number of chromium and the geometry around each chromium atom in this structure. आप नोट करें टोटल क्रोमियम के अराउंड कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6. इस क्रोमियम के भी अराउंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 6 डेटिव बॉन्ड है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. ज्योमेट्री अराउंड क्रोमियम एटम इज ऑक्टाहेड्रल. State the type of bond between the two atoms in this. तो obviously बेटा अगर ये between the chromium atom कह रहा है तो dative bond होगा. The complex reacts with aqueous acid to form chromium 2 ions. Chromium 2 ions react with oxygen under acidic condition. That's a very powerful statement. Oxygen under acidic condition. Chromium 3 ions are formed, right? Use the data booklet to answer the following question. Construct an ionic equation for the reaction of chromium 2 with oxygen under acidic condition. तो जब आप डेटा बुकलेट में जाएंगे ना तो आपको कहना चाहिए कि ये इक्वेशन मिलेगी डेटा बुकलेट के अंदर. O2 plus 4 हाइड्रोजन आयन plus 4 इलेक्ट्रॉन एरो 2H2O. ठीक है, और क्रोमियम से रिलेटेड इक्वेशन आपको पता है क्या होगी, क्योंकि क्रोमियम 2 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस है, इसका मतलब आयनिक इक्वेशन को कंसिडर करेंगे. ठीक है, आयनिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे. तो क्रोमियम 3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन क्रोमियम 2 प्लस, ये डेटा बुकलेट में इक्वेशन है. सही है.
तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसकी एसिपी की वैल्यू मोर पॉजिटिव है, और इस इक्वेशन को फ्लिप करके लिख लेंगे। सो और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ। सो मैं अब इक्वेशन को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जरा देख लीजिए। ये हो जाएगा 4Cr2 प्लस प्लस O2 प्लस 4 हाइड्रोजन आइन, then 4 chromium 3 plus plus 2H2O. कैलकुलेट ई नॉट सेल, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। डेटा बुकलेट में O2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन की एसिपी की वैल्यू है +1.23 और क्रोमियम से रिलेटेड वैल्यू है -0.41। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास +1.64 वोल्ट। ठीक है, now the next is state and explain the trend observed thermal stability of group 2 nitrates. So हम बताएंगे size of the cation increases, मतलब ionic radius increases, ये भी लिख सकता हूं मैं, एक ही बात है। So charge density and polarization decreases. Cation cannot distort the electrons of nitrate ions this makes the bond, this makes the NO bond stronger, hence decomposition takes place at higher temperature. So thermal stability increases. Lead 2 nitrate decomposes on heating in a similar manner to group 2 nitrates. Write equation for the decomposition of lead 2 nitrates. Okay. ये हो जाएगा PbNO3 taken 2, तो ये कन्वर्ट होगा लेड 2 ऑक्साइड में, फिर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, अब फिर हो जाएगा ऑक्सीजन में। Suggest how the ease of decomposition of lead nitrate would compare to that of barium nitrate. Explain your answer. You may find it useful to refer the data booklet. So आप डेटा बुकलेट में जाएंगे, लेड आइंस की चार्ज आयनिक रेडियस देखेंगे, बेरियम आइंस का आयनिक रेडियस देखेंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे कि लेड आइन का रेडियस कम है, which is why it has high charge density. So lead ions has a smaller ionic radius
as compared to barium ions. Thus, lead ions has high charge density. ठीक है? Thus, lead nitrate would decompose easier. Barium ethane diode decomposes on heating to produce barium oxide, mixture of two different gases. Construct the equation. So barium ethane diode जब decompose होगा तो convert होगा barium oxide में. What's left now? Carbon dioxide and carbon monoxide. How many oxygens? 4, 2, 1, 1. 4 oxygen, 1 barium, 2 carbon, 2 carbon. ठीक है? Okay. An impure sample of barium ethane diode has a mass of this. (50 cm cube of 0.02 mole per dm cube acidified KMnO4 NXS. Redox reaction takes place and all the barium ethane diode reacts. The resulting solution containing unreacted acidified KMnO4 is titrated with 0.05 mole per dm cube Fe2+. The endpoint is reached when 30.4 of 0.05 mole per dm cube Fe2+ has been added. Calculate the percentage by mass of this in 0.5 gram of impure sample. Show your working. MR of this is given. Okay. So, first of all, let's find out the moles of KMnO4. ये हो जाएगा 50 multiply by 0.02 divided by 1000. तो आपके पास बेटा ये आ जाएगा 0.02 into 50 divided by 1000. It's going to be 1 into 10 to the power minus 3. Similarly, endpoint is reached when 30.4 cm cube of 0.05 mole per dm cube Fe2+ has been added. So let's find out the moles of Fe2+. So ये है आपके पास 30.4 into 0.05 divided by 1000. तो यहाँ से आ जाएगा 30.4 into 0.05 divided by 1000. So ये हो जाएगा आपके पास 1.52 into 10 to the power minus 3. And obviously end point reach कर रहा है जब आप Fe2+ आयंस रिएक्ट करवा रहे हैं. इसका मतलब मैग्नेट आयंस और Fe2+ आयंस दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे. तो अगर मैं इन दोनों की इक्वेशंस को मर्ज करूंगा तो रेशियो इज गोइंग टू बी 1:5, बिकॉज मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होकर बैलेंस हो जाएंगे. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. So MnO4 negative plus 8H positive plus 5 Fe2 plus arrow
5Fe3 प्लस Mn2 प्लस 4H2O। ये इक्वेशन बनेगी जब मैग्नेट आयंस Fe2 प्लस आयंस के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1 मोल है और ये आपके पास क्या है 5 मोल। अगर आपने अभी 1.52 इंटू 10⁻³ मोल्स कैलकुलेट किए थे तो बताइए मोल्स ऑफ MnO4 कितने होंगे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, ये हो जाएगा आपके पास 3.04 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। ये वो मोल्स हैं जो कि Fe2 प्लस आयंस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये मोल्स Fe2 प्लस आयंस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये आपके इनिशियल मोल्स हैं। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे वो मोल्स मिल जाएंगे जो कि इस के साथ रिएक्शन करेंगे, राइट। सो मोल्स ऑफ MnO4 reacted with barium ethanedioate। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 1 टाइम 10⁻³ माइनस 3.04 इंटू 10⁻⁴। सो बेटा 1 एक्सपोनेंट -3 माइनस आंसर, सो ये बनेगा 6.94, सॉरी 6.96 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये जो रिएक्टेड अमाउंट है, ये जो MnO4 रिएक्ट कर रहा है इससे, तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है मैं इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करूंगा। जब इन दोनों के इक्वेशंस को मर्ज करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16 हाइड्रोजन आयंस प्लस 5C2O4 माइनस एरो 10CO2 प्लस 2Mn2 प्लस 8H2O। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन मुझे एक बात पता चल गई कि ये 2 मोल है और ये 5 मोल है। अगर आपने अभी 6.96 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स कैलकुलेट किया तो बताइए ये कितना होगा। सो बेसिकली मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, तो ये आएगा मेरे पास moles of C2O42 minus is basically 1.74 into 10⁻⁻3 moles। मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मैं MR से मल्टीप्लाई कर दूंगा मोल्स को। MR क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है विच इज 225.3। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.3920 ग्राम, राइट। वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी डिटरमिन करने के लिए मास ऑफ प्योर विच इज 0.3920 ओवर मास ऑफ इम्प्योर विच इज 0.5 इंटू 100। तो 0.5 कहाँ दिया हुआ है, 0.5 ग्राम ये दिया हुआ है, सही है। सो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 78.4। तो यहाँ लिख दीजिए 78.4%। ठीक है, देन फिर उसके बाद है बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.12 मोल पर DM क्यूब बेरियम हाइड्रोक्साइड एट 298 केल्विन। ठीक है, सो सिंपल सी चीज है, बेरियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास
आप इसको आयोनाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा बेरियम आइंस में और हाइड्रोक्साइड आइंस में। ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। अगर आपने 0.12 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन इसकी ली है तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी यहाँ से 0.12 इंटू 2, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.24 मोलर। मैं यहाँ से पीओएच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग आंसर 0.859 और पीएच डिटरमिन करने के लिए मैं ये एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ। जब मैं इसको माइनस करूंगा 14 से तो मेरे पास 13.1 आएगा। मैं 13.1 यहाँ लिख देता हूँ। सही। माइनस लॉग 0.24 0.61 आ रहा है बेटा मेरे पास। एक मिनट 0.61 आ रहा है 0.619 माइनस 14 13.38 13.4 कर दूं 38 की जगह। ठीक है। Question number 3. Define the term standard electrode potential. Standard electrode potential क्या होता है? The potential difference when the test electrode is attached to standard hydrogen electrode under standard condition. Like 180 M, 298 Kelvin and 1 mole per dm cube solution. उसके बाद वो कह रहे हैं 3 redox system A, B and C are shown. The ligands 1,2-diaminoethane is represented by En. Okay. 2 electrochemical cells are set up to compare the standard electrode potentials of 3 half cells. The diagram shows the relative potential of each electrode. ठीक है. Use this information to complete the table by adding the labels A, B, and C to reduce the order of E naught for the 3 half cell. लेकिन पहली तो बात ये हो गई, बहुत क्लियर कट स्टांस है। पहली तो बात ये हो गई कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये नेगेटिव हाफ सेल होगा, इसका मतलब इसकी एसीपी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू दिस। तो इसका मतलब अमोनिया की एसीपी की वैल्यू मोर नेगेटिव है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के लिए होगी और ये कॉम्प्लेक्स किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? बी से। तो मोर नेगेटिव जो है वो बी होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ए और सी में कंपटीशन है। तो आप जरा नोट कीजिए, यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी एसीपी की वैल्यू मोर नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसका मतलब ईएन से बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी और ये जो है ना ये सबसे, ओ मैंने उल्टा कर दिया है। ओके। मोस्ट नेगेटिव जो है वो सबसे ज्यादा बी होगा बेटा और जो लीस्ट नेगेटिव है वो वाटर का होगा।
और ये सी हो जाएगा। सही है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि ये मोर नेगेटिव था, इसका मतलब इसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होगी। तो इन दोनों में ये मोस्ट नेगेटिव है, फिर इन दोनों में ये मोस्ट नेगेटिव है। सही है, दिस वन। तो मोस्ट नेगेटिव इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? अमोनिया वाला। उससे कम कौन सा होगा? EN वाला। और सबसे कम कौन सा होगा? वाटर वाला। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। The complex ruthenium shows stereoisomerism. The ligand En is bidentate. Draw three-dimensional diagrams to show the two isomers of this. Represent the ligand using this. Name the type of isomerism. तो जाहिर सी बात है, अगर बाइडेंटेट लाइगेंड यूज कर रहे हैं आप, थ्री बाइडेंटेट लाइगेंड, तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर। और अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो जाहिर सी बात है मुझे उस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो भी करना पड़ेगा। ये n है, ये n है, ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n। ये इस तरह से अटैच हो जाएगा, ये इस तरह से, और ये इस तरह से। ठीक है। n n n n n n, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है। An electrochemical cell consists of bromine half cell and silver half cell under standard condition. Use the data booklet to calculate the E0 cell. Deduce the direction of electron flow in the wire through the voltmeter between the two half cell. E0 cell. तो भाई E0 right minus E0 left. E0 right में वैल्यू आएगी प्लस 1.09 वोल्ट माइनस प्लस 0.80 वोल्ट। ठीक है, डेटा बुकलेट में गिवन है वैल्यूज। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 1.09 माइनस 0.8। सो ये 1.09 नहीं है डेटा बुकलेट में, ये है 1.07। ये 1.07 माइनस 0.8 इट्स गोइंग टू बी 0.27। आप जानते हैं इसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव हाफ सेल। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव हाफ सेल। एंड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हाफ सेल। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो सिल्वर टू ब्रोमीन होगा। सिल्वर हाफ सेल टू ब्रोमीन हाफ सेल। ठीक है। Water is added to this half cell in V1. Suggest the effect of this addition on the E cell. Place a tick in the appropriate box. Okay. अगर मैं वाटर को ऐड कर दूं B पार्ट 1 में, यानी मेरे पास सिचुएशन ये है, Br2 प्लस 2Ag प्लस एरो 2Ag प्लस 2Br माइनस। ठीक है, ये ओवरऑल इक्वेशन बन रही होगी मेरे पास B पार्ट 1 में। अब वो कह रहे हैं कि हम वाटर को ऐड कर देते हैं। जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। जब सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से, तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जो ई सेल है वो लेस पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप यहां लिख दीजिए, ऑन डाइल्यूशन
concentration of silver ions decreases, this favors the equilibrium towards left hand side. Hence, E cell becomes less positive. ठीक है. उसके बाद है silver bromide dissolves in an aqueous solution of this ion to form the complex ion. The thiosulfate ion acts as a monodentate ligand. Define the term ligand. Donate lone pair to the transition metal ion so that dative bond is formed. So that dative bond is formed. Write an expression for the equilibrium constant Kc for equilibrium 1. तो इसके लिए मुझे Kc की वैल्यू लिखनी है, तो ये हो जाएगा concentration of Ag S2O3 taken to 3 minus. ठीक है. Into concentration of bromide ions over concentration of thiosulfate ions पावर स्क्वायर, क्योंकि 2 मोल्स हैं इसके, और ये सॉलिड है तो सॉलिड सब्सटेंसेस को Kc का एक्सप्रेशन लिखते हुए कभी भी यूज नहीं करते, इसलिए मैंने यूज नहीं किया. Some identical additional data are given about the dissolution of AgBr into thiosulfate. Ksp की वैल्यू गिवन है आपको AgBr की, और K स्टेप की वैल्यू है आपको इस कॉम्प्लेक्स की. Use your answer to C2 and these data to calculate Kc for equilibrium 1. Include the units for Kc. तो सबसे पहले तो ये बात जहन में रखिएगा कि AgBr अगर आपके पास है तो उसकी इक्वेशन ये आ रही होगी आपके पास. सिल्वर आयंस प्लस ब्रोमाइड आयंस. ठीक है, ये याद रखिएगा. अब नोट करने की बात यह है कि यहाँ पर सिल्वर आयंस हैं, लेकिन इस इक्वेशन में सिल्वर आयंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर सिल्वर आयंस यूज नहीं होंगे. ब्रोमाइड यहाँ पर है और ब्रोमाइड यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो इसका मतलब ये हुआ ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्सप्रेशन यूं लिखूंगा Kc इक्वल्स टू K स्टेप इनटू KSP. क्योंकि ब्रोमाइड न्यूमरेटर में है इसलिए KSP की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. K स्टेप की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.9 इंटू 10 टू द पावर 13. KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13. तो यहां से Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, अच्छा 9 तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 15.7. ठीक है. अब आप नोट करें, ये स्क्वायर है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर DM माइनस 6, और इसके थ्रू भी ये भी क्या हो जाएगा मोल स्क्वायर DM माइनस 6.
ये दोनों यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल। यानी आप समझ लीजिए ये हो जाएगा मोल स्क्वायर DM-6, और स्क्वायर की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर DM-6। इसका मतलब ये यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है। The numerical values of the stability constant for two other silver complexes are given. एक की वैल्यू 18 में आ रही है, एक की वैल्यू 7 है। An aqueous solution containing silver ions is added to a solution containing equal concentration of cyanide, ammonia, and thiosulfate ions. The mixture is left to reach equilibrium. Deduce the relative concentration of this present in the resulting mixture. Explain your answer. जाहिर सी बात है साइनाइड जो है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन का होगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है। और थायोसल्फेट आयन से रिलेटेड ये है वैल्यू, तो फिर थायोसल्फेट आयन आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, 3 माइनस ओ, एक मिनट, 2 3 माइनस। ठीक है, और सबसे कम जो है वो अमोनिया का होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम है। ठीक है। higher the K step value, higher the concentration. And vice versa. ठीक है जनाब। Define the term lattice energy. Lattice energy when 1 mole of ionic solid is formed from its gaseous cation and anion under standard condition. मैं स्टैंडर्ड कंडीशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आयनिक सॉलिड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, वो एट रूम टेम्परेचर प्रेशर सॉलिड होगा। ठीक है। Use the following data to calculate a value for the enthalpy change of solution of copper to chloride to find it helpful to construct an energy cycle. बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है इक्वल्स टू माइनस लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसलिए हमें साइकिल की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं माइनस लैटिस एनर्जी कितनी दी हुई है, -2824 प्लस हाइड्रेशन ऑफ कैटाइन -2099 प्लस हाइड्रेशन ऑफ एनाइन -378। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में 2 क्लोराइड आइंस हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू बेटा हो जाएगी मेरे पास -31 किलोजूल्स पर मोल। फिर वो कह रहे हैं आपसे the enthalpy change of hydration of calcium ion is this. Use the data booklets to suggest why there is a big difference in the value of hydration in copper. देखें, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है। इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी कॉपर आयंस की, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी लेस एक्सोथर्मिक है। सो आप बताइए
data booklet. Can you give me the, right now I don't have any data booklet. Can you give me uh, the ionic radius of calcium and copper ions? Let me search it. Let me search it. But this is my new data booklet. Can you give me the ionic radius of from the old data booklet? Can you just give me? जी बेटा कोई बता सकता है मुझे? Okay. So copper ion has a small ionic radius than calcium ion. So it has a high charge density. Which is why its hydration enthalpy is highly exothermic. Identify the substance formed at the anode and the cathode during the electrolysis of saturated calcium chloride. एनोड के ऊपर बेटा क्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी क्लोरीन की, वाटर निकल चुका होगा. कैथोड के ऊपर ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस होगी. ठीक है. Calcium can be produced by the electrolysis of molten calcium chloride. Calculate the mass in gram of calcium formed when a current of 0.75 ampere pass through for this. Okay, तो ये हो जाएगा आपके पास Q equals to I times T. तो ये हो जाएगा आपके पास 0.75 into 60 into 60. तो ये हो जाएगा 0.75 into 60 into 60. तो ये हो जाएगा 2700 कूलम्स. मैं यहाँ से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूँ. तो 2700 को हम डिवाइड कर देते हैं फैराडे कांस्टेंट से, विच इज 96500. तो यहाँ से एक मिनट बेटा, कैलकुलेटर में 9 नहीं वर्क कर रहा. 2700 डिवाइडेड बाय 9650. ये हो जाएगा 0.0279. तो ये हो जाएगा 0.028 मोल्स. ठीक है. आप जानते हैं कि कैल्शियम आयन और इलेक्ट्रॉन्स में 2:1 का रेशियो है. अगर आपने 0.028 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ कैल्शियम आपके पास कितने हो जाएंगे? 0.028 डिवाइडेड बाय 2. ये हो जाएगा आपके पास 0.014
अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मैं कैल्शियम के AR से मल्टीप्लाई कर दूंगा 40.1 इंटू 0.014 इंटू 40.1, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.5614 ग्राम, ये जगह 0.5614 ग्राम। Now the next question is, explain what is meant by the term entropy of the system. Entropy of the system. तो आप लिखिए, it is a measure of the disorderness of the system. फिर आपके पास है place one tick in each row in the table to show the sign of each entropy change. जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फ्री मोबाइल आयंस बढ़ते हैं, तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। जब आप वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, आप उसको सॉलिडिफाई करके आइस में कन्वर्ट करते हो, तो यानी वो लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, इरेगुलर से रेगुलर अरेंजमेंट हो रही है, तो जाहिर सी बात है एंट्रोपी कम हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं द इवेपोरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर हैज अ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ +8.6 किलो जूल्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो +8.6 यहां पर आ रहा होगा कहीं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं sketch a graph on the axis to show how delta G changes for this process between 25 and 150 at 101, 25 से 150। तो बेटा ये इस तरह से बन जाएगा आपका, ठीक है। सही बेटा। The reaction between A and B is feasible at low temperature but is not feasible at high temperature. Deduce the sign of delta H and delta S with this reaction and explain why the feasibility changes with temperature. तो मैंने आपको 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज करवाई थी, उसमें से एक ये है, डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पर होगी नेगेटिव और डेल्टा S की वैल्यू भी यहाँ पर होगी नेगेटिव, ठीक है। तो आप देखिए, आपके पास है डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S नॉट, सही है। आपके पास ये वैल्यू क्या है, माइनस, ये माइनस टी एज इट इज, और ये वैल्यू भी क्या है आपके पास, माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर को हाई करेंगे तो टी डेल्टा एस नॉट टर्म बिकम्स मोर पॉजिटिव, सो डेल्टा जी वुड बी पॉजिटिव एंड देयरफॉर रिएक्शन इज नॉट फीजिबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो आप यहां लिख दीजिए at high temperature T delta S naught term becomes more positive, so delta G is positive, hence reaction is not feasible at, ठीक है। Question number 5. Describe and explain the relative basicities of phenylamine, ethylamine, and 4-nitrophenylamine. Ethylamine most basic,
और फिर उसके बाद है आपके पास फिनाइलमाइन, और फिर 4 नाइट्रोफिनाइलमाइन, ठीक है जी। रीजन आपसे पूछ रहे हैं तो आप बताइए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग alkyl group due to positive inductive effect increases the electronic density on nitrogen atom, thus lone pair is easily available for protonation. फिर लिखिए इन फिनाइलमाइन lone pair is delocalized with a pi bond of benzene ठीक है। फिर उसके बाद बताइए due to the presence of electron withdrawing NO2 group, lone pair of nitrogen is not available for protonation, ठीक है। The dye R can be synthesized from 4 nitrophenylamine in 2 steps, ठीक है। देखो एज अ डाई बनाने के लिए यू नीड डाइजोनियमाइन, राइट? तो Q इज डाइजोनियमाइन, डिड्यूस द स्ट्रक्चर इन सॉल्ट Q, तो ये हो जाएगा आपके पास डाइजोनियमाइन। तो ये हो जाएगा आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ये NO2 एज इट इज, और वो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्ट Q, जब सॉल्ट होगा तो यहाँ पर Cl माइनस भी आएगा, ठीक है। स्टेट रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 1। तो NH2 को डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड सोडियम नाइट्राइट एंड HCl का मिक्सचर, एंड कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर, above 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बल्कि below 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और स्टेप 2 के लिए आप देखें इस डाइजोनियमाइन के साथ आपने ये कंपाउंड यूज करवाया है, तो आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिख दीजिए।
ठीक है, ये आपका कंपाउंड आ गया। फिर वो कह रहे हैं कंपाउंड जी कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मिथाइल बेंजीन इन 3 स्टेप्स। ठीक है, पहली तो बात ये कि ये CH3 COOH में कन्वर्ट हुआ है, और दूसरी बात ये कि NO2 ग्रुप ऑर्थो और ब्रोमीन ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच हुए हैं। तो इसका मतलब पहले नाइट्रेशन करवाओ, फिर हैलोजिनेशन करवाओ, और फिर सबसे एंड में CH3 को COOH में कन्वर्ट कर दो। सही है। तो गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ कंपाउंड जी। इसका सिस्टमैटिक नेम तो सबसे पहले ब्रोमीन, क्योंकि Br पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सही है। तो पहले आप नाइट्रेशन करवाएंगे ऑब्वियसली, फिर आप हैलोजिनेशन करवाएंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप 3 में ऑक्सीडेशन होगी, तो CH3 कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। स्टेप 1 concentrated nitric acid, concentrated sulfuric acid और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। स्टेप 2 में हैलोजिनेशन है, तो ब्रोमीन, और क्योंकि बेंजीन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है तो AlBr3 कैटलिस्ट हो जाएगा। स्टेप 3 में ऑक्सीडेशन हो रही है तो KMnO4 यूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और हीट भी करूंगा मैं साथ में इसको। Question number 6. There are 4 possible structural isomers of C8H10 that contains a benzene ring. Draw a skeletal formulae of the 4 structural isomers in the appropriate boxes. The number of peaks observed in carbon-13 NMR spectrum of each compound is given. Okay. वो कह रहे हैं कि 3 peaks हैं। ओके, तो जरा देखिए, हमारे पास बेंजीन रिंग हो गई, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। तो यहाँ से हाउ मेनी कार्बन एटम्स लेफ्ट? 6 तो मैंने ले लिए, तो C8H10 है, उसमें से C6H4 मैंने यूज कर लिया बेंजीन रिंग में। व्हाट्स लेफ्ट नाउ? 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, राइट। अब जो हाइड्रोजन यहाँ कार्बन इस बेंजीन रिंग के होंगे, वो इसके साथ शामिल हो जाएंगे। जब इसके साथ शामिल हो जाएंगे तो वो C2H6 बनेगा। C2H6 का मतलब 2 अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, या ये बनेगा स्ट्रक्चर। ये बनेगा। अब देखिए कैसे कह रहे हैं, ये दोनों क्या होंगे? सेम 1 पीक। ये दोनों क्या होंगे? सेम 2 पीक। इसके लिहाज से ये दोनों सेम, इसके लिहाज से ये दोनों सेम, इसका मतलब इन चारों की पीक क्या होगी? सेम। ये फर्स्ट 2 हो गए, फिर ये दूसरे हो गए, और ये चारों का एनवायरनमेंट सेम होगा, तो टोटल 3 पीक्स हो जाएंगी। फिर आइसोमर 2 में कह रहे हैं 4 पीक्स। इसका मतलब बेंजीन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होने चाहिए हर केस में। तो एक ये अटैच हो गया और एक ये अटैच हो गया, ठीक है। 4 पीक्स कैसे? ये 1, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके पास? 2। आप जानते हैं कि ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन सेम होगी, और आप जानते हैं कि ये दोनों कार्बन एटम भी सेम होंगे, 4 हो जाएंगी। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये दोनों थर्ड, ये दोनों फोर्थ। आइसोमर 3 5 पीक्स।
तो बेंजीन में 5 पीक्स कैसे बनेंगी? इस तरह से बना लें। कैसे? ये दोनों सेम एनवायरनमेंट, फिर ये दोनों सेम एनवायरनमेंट, फिर ये हो जाएगी आपके पास, फिर ये दोनों हो जाएंगी पीक्स आपके पास, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हो जाएगी पीक आपके पास। तो 5 पीक्स हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड दिस वन इज फिफ्थ। 6 कह रहे हैं, तो 6 का मतलब एक इथाइल ग्रुप आ जाएगा। राइट? कैसे? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगी फोर्थ, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगी फिफ्थ, और ये दोनों मिलाकर और ये क्या हो जाएगी सिक्स्थ। सही है बेटे? फिर वो कह रहे हैं आपसे a 3-step synthesis of X from benzene is suggested as shown। ये बेंजीन है, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो अल्काइलेशन होगा, अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अटैच कर देता हूँ बेटा। ये बेंजीन रिंग है। ओके, देख लें। Step 1 is the alkylation of benzene by electrophilic substitution। Write an equation for the formation of electrophile। ओके, ये तो बहुत आसान है, आप इसको कर लीजिए RCl प्लस AlCl3 एरो AlCl4 नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव। ठीक है, deduce the structure of W and X in the boxes। okay, now I can write that। ये हो जाएगा आपके पास CH2O। याद रखिएगा कि मैं, ये स्केलेटल में है, इसका मतलब ये भी स्केलेटल में ही बनेगा, तो ये हो जाएगा CH2 1 2 3 1 2 3 CH2, ये हो जाएगा COH। ठीक है भाई? और जब आप इसको AlCl3 से रिएक्शन करवाएंगे इस कंपाउंड को, तो ये एसाइल हैलाइड है, बेंजीन के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। इस स्ट्रक्चर को देखिएगा। हाँ, मैं इसमें कुछ कलरिंग्स कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। एक कलर, एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, ये थर्ड बॉन्ड है, और ये फोर्थ बॉन्ड है। ठीक है, सो जब AlCl3 से रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगी सिचुएशन, देखते जाइएगा। ये बॉन्ड एज इट इज, उसके बाद ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज। राइट? और यहां पर क्या है CO, और ये बॉन्ड एज इट इज, ये बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर को उठा के बेटा यहाँ कॉपी कर देते हैं हम। ठीक है, कैसे बना समझाया मैंने आपको कि यहां से क्या जा रहा होगा H, और यहां से क्या जा रहा होगा Cl, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे HCl, फिर ये प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है,
सजेस्ट रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 2। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से एसाइल हैलाइड बनाया आपने, तो PCl5 यूज करेंगे आप। ठीक है बेटा। और PCl5 जब आप यूज करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको हीट भी करते हैं। बल्कि PCl5 के लिए हम रूम टेम्परेचर प्रेशर लेते हैं, हीट नहीं लेते। उसके बाद है आपके पास कंप्लीट द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म इन B1, include all relevant charges and curly arrows showing the movement of electron pair, draw the structure of the intermediate। ओके तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास R प्लस, तो ये इसका पाई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये बॉन्ड इनटू द रिंग जाएगा और ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। In aqueous solution, chlorine dioxide reacts with hydrochloric gas, hydroxide ion, as shown in the diagram equation. A series of experiments is carried out using different concentration of these ions. The table shows the result obtained. Define the term order of reaction. Power to which the concentration is raised. Is called order of reaction. Use the data in the table to determine the order of reaction with respect to each reactant. ठीक है, explain your reasoning. मैं सबसे पहले ClO2 के लिए वर्किंग कर लेता हूं। अगर मुझे ClO2 का ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो मैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट को यूज करूंगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो 0.02 ये हो जाएगा 7.20 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 4.50 इंटू 10 टू द पावर -3। एक्सपेरिमेंट 1 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.020। एक्सपेरिमेंट 3 की है 0.050 पावर m। तो यहां से m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 1। नहीं, ये 2 आ रही है। ठीक है। सिमिलरली फिर मैं यहां पर OH नेगेटिव आयन से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। OH नेगेटिव आयन के लिए मैं फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को यूज करूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पर। सो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में 7.20 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 2.88 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास 0.03 और फिर ये हो जाएगा 0.120। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट। ठीक है। use your answer to A2 to construct the rate equation। तो ये हो जाएगा रूट रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ ClO2 पावर स्क्वायर क्योंकि 2 सेकंड ऑर्डर है और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। use the rate equation in the data from experiment 1 to calculate the rate constant। तो रेट कांस्टेंट का रेट कांस्टेंट निकालने के लिए मैं वैल्यू ले लेता हूँ 7.20 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ ClO2 है 0.020, इसका स्क्वायर कर लीजिए और ये है 0.030। तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा K का 60। अच्छा यूनिट देखिए, यूनिट यहां पर है मोल स्क्वायर। ओहो, यहाँ पर यूनिट है मोल पर DM क्यूब
सेकंड इनवर्स, ये के एज इट इज, और ये हो जाएगा मोल क्यूब DM-9। तो जब ये यूनिट्स कैंसिल होंगी तो ये बनेगा आपके पास यूनिट मोल इनवर्स 2 DM6 सेकंड इनवर्स। फिर वो कह रहे हैं आपसे the decomposition of benzene diazoniamine using a large excess of water is the first order reaction. The graph shows the result obtained. ठीक है, draw the structure of the organic product formed in this reaction. जब हम बेंजीन डाइजोनियम आइन को यानी इस कंपाउंड को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, इट विल टर्न टू फिनोल। इफ यू रिमेंबर हमने रिएक्शन करवाया ऑर्गेनिक में आपको, तो ये फिनोल बन जाएगा। वो कह रहे हैं यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन एट 100 सेकेंड, शो योर वर्किंग। तो 100 सेकेंड के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। गाइस इस वक्त मेरे पास 100 सेकेंड्स पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। जिस तरह का टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है। एक मिनट मैं इसको सही से कर लूं। जी बेटा, ये मैंने रफली करके दिखाया आपको, ठीक है। तो यहां से आपके पास तकरीबन टाइम आ रहा है आपके पास 250 समथिंग, और ये 0.01 और ये आ रहा है। तो इन दोनों को आप यूज करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 0.015। मैं एक रफ वैल्यू लेके कर रहा हूँ। रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन 0.0156 डिवाइडेड बाय 260 टाइम है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.0156 डिवाइडेड बाय 260, इट्स गोइंग टू बी 6 into 10 to the power -5। सही है। उसके बाद है sketch a concentration time graph for zero order reaction. तो concentration time graph for zero order reaction has to be like this. Use your graph to suggest how successive half-lives for a zero order reaction vary as the concentration of reactant decreases, indicates by placing a tick in the appropriate box in the table. तो मैंने आपको लिखवाया है कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, तो सक्सेसिव हाफ लाइफ जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर आपको याद हो, इसका हाफ करेंगे ये आ जाएगी वैल्यू। तो यहां से यहां तक हाफ लाइफ हो गई फर्स्ट, तो इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगी। देखें यहां से यहां तक ये सेकंड हाफ लाइफ हो गई, तो पहली वाली ज्यादा है और दूसरी वाली कम है। ये नोट्स में लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है। State and explain the relative rate of hydrolysis of acyl chloride, alkyl chlorides, aryl chlorides. Beta fastest is acyl chloride.
उससे कम किसका होगा? अल्काइल क्लोराइड्स। सबसे कम किसका होगा? एराइल क्लोराइड्स, जिसको हम एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। वो आपसे रीजंस पूछ रहे हैं, तो आप बताइए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ more electronegative oxygen and chlorine, carbonyl carbon in acyl chloride is highly electron deficient. ठीक है। In aryl chloride, carbon chlorine bond is stable and inert due to the delocalization of pi bond of benzene. ठीक है। The drug remifentanil is shown. Okay. Remifentanil is completely hydrolyzed under acidic condition. Guys, completely hydrolyzed under acidic condition. 3 different organic compounds are formed. ठीक है। ओके, तो पहली चीज, कौन यहां से ब्रेक हो रहा होगा, कौन यहां से ब्रेक हो रहा होगा, कौन यहां से ब्रेक हो रहा होगा, तो सारे एस्टर अमाइड लिंकेज ब्रेक कर दीजिए। आप जानते हैं ये हाइड्रोजन हासिल करेगा और ये OH, तो यहां पर भी क्या हासिल करेगा, ये H, और ये क्या हासिल करेगा, OH। सिमिलरली ये क्या हासिल करेगा, वाटर का H, और ये क्या हासिल करेगा, वाटर का OH। ये कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको, है ना। तो अब देखते हैं, पहली प्रोडक्ट तो ये बन रही है CH3CH2COOH, और क्योंकि ये स्केलेटल में है इसलिए आंसर इसी तरह से दिया जाएगा CH3CH2COOH। ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट ये है CH3OH, और तीसरी प्रोडक्ट जो है ना वो ये है, दिस एंटायर थिंग। सो अगर मैं, अब क्योंकि मैंने सॉल्व करा दिया तो मैं इसको थोड़ा सा देख लूं। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। This is going to be the product
चलो ठीक है, इसको यहाँ उठा के लिखते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा OH, ये भी क्या हो जाएगा OH, ये NH में कन्वर्ट होगा। एक मिनट रुक चाहिए, सही है, नोट कर लीजिए आप। ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH में। ये आ गया, सही है, दैट इज योर प्रोडक्ट। उसके बाद पार्ट C, कंपाउंड Y, reacts with sodium carbonate to evolve bubbles of gas। इसका मतलब इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। The proton NMR spectrum of compound Y in D2O is shown। ठीक है, use this information to suggest a structure for Y and obviously एक दो डुप्लेट हैं, एक मेरे ख्याल से मल्टीप्लेट भी है आपके पास। सो this shows कि after D2O 3 chemical environment है, right? D2O की वजह से जो COOH की पीक थी वो डिसअपियर हो चुकी होगी, वो यहाँ लिखी नहीं है स्पेक्ट्रम में। सो COOH जरा देखिए, CH3 CH2 CH2 COOH, एक स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगा, सही है, 5 कार्बन एटम्स का। दूसरा ये भी तो हो सकता है CH3 CH3 CH2 COOH, राइट। एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है CH3 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 COOH। अगर मैं विदाउट D2O देखूंगा तो फिर 4 पीक्स मिलेंगी मुझे, राइट, क्योंकि COOH की भी पीक आ रही होगी। तो अब देखो किसमें 4 पीक्स आ रही हैं, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इधर से मुझे 5 पीक्स मिल रही हैं, इसका मतलब ये गलत होगा। ठीक है बेटे, अब यहां से देखिए, ये फर्स्ट पीक और ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, सेकंड पीक। यहां से कितनी पीक्स मिलेंगी, 2 पीक्स, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। यहां से देखिए, फर्स्ट पीक, सेकंड, थर्ड, और इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस से अटैच है, तो 4 पीक्स हो जाएंगी। दैट मींस दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो हम यहां लिख देते हैं CH3 CH CH3 CH2 COOH। ठीक है बेटे, use the data booklet, the proton NMR spectrum and your answer to C1 to complete the table। 0.95 इन दोनों से रिलेटेड होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं CH3, स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, डबलेट। क्यों, इसलिए क्योंकि इन दोनों CH3 के नेबर में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ये डबलेट देगा N+1 रूल के हिसाब से। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक, जाहिर सी बात है ये 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 6H। 1.90 पे मल्टीप्लेट है, वो ये है CH की वजह से, क्योंकि इसके नेबर में 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये मल्टीप्लेट आ जाएगी आपके पास 2.20 के ऊपर। अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल है,
2 प्रोटॉन्स की वजह से आ रही है, और इसके नेबर में क्योंकि एक हाइड्रोजन है तो ये भी डबलेट देगा आपको। सही है, CH2 के नेबर में एक हाइड्रोजन है, डबलेट देगा। So that's all. We are done with the paper.